Thank you. So I'm starting with today's session, and as you can see, we are here to talk about the payment report of Flipkart. We have discussed in past the Amazon payment report. We are today going to discuss the payment report of Flipkart. Today's agenda would be only understanding of the various components, the understanding of the SKU-wise profitability. We will take in the next session that we'll have, and of course we record all these sessions. We put it on the YouTube and float the links also. So as you would have already known, we are DigiDesign Group. DigiDesign is the digital marketing agency serving over 100 plus brand owners. So we do all kind of digital marketing activities for them, plus even the e-commerce store management that if people wish to get it done. Earlier we were not doing, but now the team has started. DigiCart India, we are a leading e-commerce player. This is the name I sell in both on Amazon and Flipkart, and we are actually now doing 20,000 plus units. The slide data is a little old. Ecomically is providing support to the group on tech, warehousing, logistics, sales, and analytics. And analytics platform we are also building for some e-commerce sellers. And TrueTurtle is, you can check the website, launch of brands on various e-commerce platforms. So under TrueTurtle, we help people do that. So you can check the site, trueturtle.com. So we have our own managed warehouses. 4 are there. So 2 are in Bangalore and 1 in Gurgaon and 1 in Bhiwandi. And we are working through Amazon and Flipkart warehouses also. We are premium sellers with Amazon, platinum sellers with Flipkart. And this is the team that is assisting. So actually 3.5 men and women which are assisting. And yes, if you are very much process oriented, you can easily do this. So I will come straight away to the point. So this is the seller login that you see whenever you log in into your platform, your panel, the seller panel. So on the seller panel, you have to go to the payments and go to the previous payments. I'm telling you how to download a payment report and how to analyze the payment report. Once you do that, this is the kind of screen that comes in, and what you can do is that you can pick and choose. I'm sorry, this is the screen that comes in. So what you have to do is that I missed one screen in between. So in one of the screens, you can download any dates payment report that comes. So Flipkart, what they are doing with us is that every week they make 3 payments to us, 6 payments. Every second day they make 2 payments, which is electronic and a COD payment. And they have a different NEFT ID associated. So basis that you can download the payment report. And once you do that, you can go to this page where we have already requested a download. And after that, you can go to reports, report center. And you will see that, like I have downloaded this report, which belongs to August 21. I have downloaded today on August 26th. So this has come in the downloads, and I can perform the action of download here, and then the magic begins. So I'll straight away take you to the Excel file that got generated, and I'll showcase that to you. Is the screen visible? Can somebody just say yes or no? Yes, sir. It's visible. Okay. Thank you very much. Okay. So this is how it comes. So this is one payment that they have made to me for the postpaid orders. As you can see, the first tab talks about the report help as to how this report needs to be read. This is what I'm going to tell you. The second tab is the summary of the report. In summary of the report, it tells you that orders पे आपको कितना पैसा मिला है, उसकी कितनी amount settle हुई है. As in this case, you can see that
दे पेड मी फॉर 10 लाख रुपीज ऑफ सेल्स, रिटर्न्स जो आए उसके उन्होंने इतने पैसे माइनस कर दिए। जो ऑफर्स थे जो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से चलाता है और हमारे को पेमेंट रिपोर्ट में कम दिखाता है सेल्स अमाउंट में, और बट वो कस्टमर को अपनी तरफ से देता है, तो दे गिव इट बैक टू अस इन दी ऑफर अमाउंट। एंड देन देर आर एनी कस्टमर एड ऑन्स अमाउंट, जैसे कोई भी इनका जो एक्स्ट्रा कस्टमर उन पे खर्चा करता है ऑर्डर के टाइम पर, सो इट कम्स टू अस। एंड देन ऑफ कोर्स द मार्केट प्लेस फीस इज देयर, उस पे कितना टैक्सेस है, कोई एडजस्टमेंट छोटा मोटा, दिस इज हाउ इट कम्स। Any marketplace fee rebate that has been credited for whatever reason, they keep on doing it in case of any incentive program जो backend में चल रहा होता है, so this is what they do. SPF protection fund, it is the claim that you make for any of the returns that come to you which are in unsellable condition. You click the pictures and you upload them and they pay you. And then of course is the service fee part. So as you can see, the ads fees that they have taken from us under this is around this much amount that we have spent for that particular payment cycle, which is I think 2 days maybe, or 2 or 3 days. This is the ad fees that they have taken from us. So this is in minus because that will be deducted. So the best part is कि minus मतलब आपकी जेब में से जाएगा, plus मतलब आपकी जेब में आ रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू डिसिफर कि आपका खर्चा है या इनकम है। रिटर्न्स रिवर्सल के केस में जो है, जैसे रिटर्न्स है, जब आपके पास सेल्स आई तो प्लस में आया, रिटर्न हुई तो माइनस में हुआ, तो रिटर्न का अगर कोई भी फी रिवर्स होएगा तो वो प्लस में होता है। फी रिवर्स जो है, क्योंकि फी जब आपको लगा होगा तो माइनस में लगा होगा, जब फी रिवर्स होगा तो वो प्लस में रिवर्स होगा। सो ये सब करके उन्होंने आपको जितना भी क्रेडिट, जो नेट बैंक सेटलमेंट थी उसके अंदर इनपुट, जीएसटी, टीसीएस क्रेडिट्स, इनकम टैक्स क्रेडिट्स कर करा के इन्होंने आपको ये 7.3 लाख का हमारे को पेमेंट दे दिया। सो नाउ इफ यू विल सी वेरी क्लियरली दिस ऑर्डर्स, इन्होंने जो लिखा, इट हैज वन टैब। एमपी फी रिबेट, इट हैज अनदर टैब। प्रोटेक्शन फंड, इट हैज अनदर टैब। सर्विस फीस और ये जो टैक्स सेटलमेंट्स हैं, इनके अलग अलग टैब्स हैं जो इन्होंने अलग अलग ये आपसे फीस ली हुई है। So I will come to orders because that is the most important part of this entire thing. अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे को 7,36,000 का सेटलमेंट आया है, उसमें 7/26 का जो सेटलमेंट है वो ऑर्डर्स टैब से ही है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज वेयर you have to read it very good, very well, and I will help you understand this. Any questions till now? Any questions? Okay, so I'll move ahead. So columns A to E in the Flipkart payment report, this is basically tells you, अगर आप देखेंगे NEFT ID सेम रहेगा सबका, this is same. So whatever the row items are, so like 520 row items are there, सबका जो NEFT ID है वो सेम है because वो एक सेटलमेंट का NEFT ID है। पेमेंट डेट 21 अगस्त को हुई थी। अब ये 520 लाइन आइटम्स क्या हैं? The best part about Flipkart system, पेमेंट सिस्टम इज, जो मुझे Amazon से भी बेटर लगता है, कि उनकी पेमेंट रिपोर्ट में ऑर्डर वाइज और ऑर्डर आइटम वाइज पेमेंट्स आती हैं, विच मीन्स कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से ऑर्डर पे आपको कितना पैसा मिला है। अगर आप पेमेंट्स रिपोर्ट्स इकट्ठे करके रख रहे हैं एक्सेल में, या हमारे पास एक फीचर है अभी इकॉमिकली के अंदर, तो यू कैन एक्चुअली क्लब ऑर्डर वाइज आपको क्या क्या आया है एंड सी व्हाट हैज पर ऑर्डर वाइज आपको कितना पैसा मिला है या कटा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब फॉर ईच ऑफ दीज 520 लाइन आइटम्स आपके पास ऑर्डर आईडी, जैसे आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ मिलेगा। ऑर्डर आइटम आईडी इज द यूनिक नंबर। ऑर्डर आइटम आईडी का मतलब ये रहता है कि अगर जैसे एक ऑर्डर के अंदर आपके 2 या 3 ऑर्डर्स हैं, तो वो हर एक अलग यूनिट जो है ऑर्डर आइटम आईडी से डिफाइन होएगा। और अगर सेम ऑर्डर के अंदर एक यूनिट रिटर्न आ जाती है, तो वो रिटर्न जो है एक अलग ऑर्डर आइटम आईडी के हिसाब से डिफाइन होगी, लाइक दैट।
सो इट सेज कि 520 लाइन आइटम्स जो है उसमें बैंक सेटलमेंट आपको कितना मिला है, और उसमें इनपुट जीएसटी और टीसीएस क्रेडिट कितना है, और इनकम टैक्स का क्रेडिट कितना है. So I'll tell you that for whatever the base amount of value is, यानी अगर हम लोग कोई सामान 850 रुपए का बेस वैल्यू है, 18% टैक्स के साथ हम उसको 1000 रुपए का बेचते हैं, तो 850 रुपए पे 1% जो है टीडीएस लगता है, यानी 8.5 रुपए जो है टीडीएस लगेगा, जो इनकम टैक्स 26 AS में हमारे जाता है. और 8.5 रुपए का ही जो है हमारे को उस केस में टीसीएस जो क्रेडिट है, बेसिकली हमारा जो टीसीएस क्रेडिट जो हमारे को जीएसटी पोर्टल पे दिखता है, जो ई कॉमर्स सेलर्स के लिए लगता है. सो ऑलरेडी जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो ऑलरेडी टीसीएस की अमाउंट जो है वो वहां पे जमा होती है आपके पोर्टल में. तो वो टीसीएस 1% ऑफ द बेस अमाउंट वो यहाँ से आ रहा होता है. तो इस केस में जो मेरा प्रोडक्ट का जो बेसिक कॉस्ट रहा होगा वो 1694 रुपीज रहा होगा. तो 1694 में जैसे आप देख रहे हैं टीडीएस जो है 1% 16.94 का है, और 41.50 रुपीज जो इन्होंने एक अलग इनपुट जीएसटी प्लस टीसीएस क्रेडिट है, उसके अंदर इनपुट है आपका जीएसटी का और प्लस टीसीएस क्रेडिट है, जो टीसीएस क्रेडिट भी 1% है. तो 16.94 की वैल्यू वहां से आ रही है, विच मीन्स 24.56 रुपए जो है वो आपका जो है इनपुट जीएसटी है. आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, आई जस्ट कंफर्म दैट अगेन. इनपुट जीएसटी में वो गया हुआ है. So there could be some difference, which I'll just tell you what exactly it is, but this is how it is. Input GST plus TCS credit and the income tax credit, ये इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं. So I'll move ahead. जैसे यहाँ पे सेल अमाउंट हमने जैसे कोई चीज की सेल करी 1989 की, उस पर टोटल ऑफर अमाउंट जो था, नाउ दिस इज दी ट्रांजैक्शन समरी जो ये खुल के बता रहे हैं. सेल अमाउंट वाज 1989. ऑफर अमाउंट और माई शेयर या कस्टमर एड ऑन इसके अंदर था कि कस्टमर ने 10 रुपया कुछ दिया उसके अंदर, और हमारी मार्केट प्लेस फीस लगी वो लगभग लगी 136 रुपए की, जो फीस लगी, जो इन्होंने सम किया हुआ है कॉलम यू से लेकर कॉलम ए एच तक. तो अभी मैं एम के बाद वाले जो कॉलम्स है सीधा यू कॉलम पे एक बार आपको ले जाकर दिखा देता हूं. So these are basically the items which are there in marketplace fees, like the fixed fee or the collection fee or the shipping fee, reverse shipping fee, all these no cost EMI disbursements, installation fee, tech fee, uninstallation packaging fees, customer add-ons या amount recovery जो भी है, franchisee fee, Shopsy market product cancellation. So all these fees which are there, they become part of this marketplace fee that you can see of 136 rupees. So इस ग्रीन पोर्शन का जो मार्केट प्लेस फी है एम कॉलम उन्होंने खोल के रखा हुआ है ये पूरे ऑरेंज कॉलम्स में. जो मार्केट प्लेस फीस का जो ये बड़ा वाला कॉलम है, इसके अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लिया हुआ है वो सारा इन्होंने दिखा रखा है. दिस इज द ट्रांजैक्शन कॉलम. इफ यू विल सी, जो इन्होंने 16 रुपये 94 पैसे का 16.94 का टीसीएस ले रखा है. टीसीएस जो जीएसटी पोर्टल में जमा हो जाता है, सो व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट्स, टीडीएस जो है 16.94 का ले रखा है, और जो जीएसटी था 24.56. अगर आपको याद हो, आपने एक फिगर देखी थी, 24.56 प्लस 16.94 माइनस में 41.5 की जो उन्होंने टीसीएस प्लस इनपुट जीएसटी लिखा हुआ था. वो इनपुट जीएसटी जो है 24.56 का, दैट इज 18% ऑफ जो मार्केट प्लेस फी लगी थी जो 136 रुपीज की थी. सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. देन एनी ऑफर्स जो हमारे केस में इस वाली लाइन आइटम के अंदर जीरो थे, वो सारा जो डिटेल्स है वो इसके अंदर आ जाता है.
एंड देन ऑफ कोर्स दिस शिपिंग डिटेल्स ये बता देता है आपको कि भाई आपका ये जोनल शिपिंग था या नेशनल शिपिंग था, चार्जेबल वेट स्लैब कितना था, आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना था, लेंथ ब्रेथ हाइट कितना था। तो वो सारी की सारी फ्लिपकार्ट का सिस्टम जो कैलकुलेशन करने में आपकी शिपिंग फीस का जो कैलकुलेशन करता है, किस हिसाब से करता है, दिस इज गिवन इन द शिपिंग डिटेल्स कॉलम। इसको आपको प्लस माइनस नहीं करना है सेटलमेंट देखने के लिए, बट आपको जो प्लस माइनस करना है वो शुरू के कॉलम्स को करना है। एंड देन इट गिव्स यू द ऑर्डर डिटेल्स कि ऑर्डर की डेट क्या थी 10 अगस्त, डिस्पैच डेट क्या थी 13 अगस्त, सेलर का इजी शिप था, पोस्ट पेड ऑर्डर था, क्वांटिटी 1 थी, मैंने एसक्यू डिटेल अभी छुपा रखा है इसके अंदर। वॉज इट देयर एनी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर नहीं था, बट जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने 5 क्वांटिटी का सामान मंगाया है, तो मल्टी प्रोडक्ट शिपमेंट हो गई है। क्या इसमें रिटर्न हुआ? नहीं। क्या ये शॉप्सी का ऑर्डर था? नहीं। आइटम का रिटर्न स्टेटस? नहीं, कुछ भी नहीं था, नॉट एप्लीकेबल था। एंड देन बायर इनवॉइस डिटेल्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी कैलकुलेशन, बट यस इट इज गिवन देयर। एंड देन बायर सेल डिटेल, बायर की साइड से ये क्या कहानी उसकी रही होगी, इट सेज इट ऑल कि उसको सेल अमाउंट उसने 1989 पे किया है, उसको जो है बीटी से बीयू यानी उसको फ्री शिपिंग ऑफर या नॉन फ्री शिपिंग ऑफर उसको कुछ भी नहीं मिला था, तो उस पर उसका कुछ भी नहीं लगा पैसा। और माई शेयर एज इन फ्री शिपिंग अगर उसको सेलर की तरफ से जा रही है या नॉन फ्री शिपिंग कोई ऑफर है, तो वो उस केस के अंदर उसको वो भी जीरो का मिला हुआ है। सो दिस इज हाउ इट काइंड ऑफ it calculates everything. So if you will see here, I'll come back to the first point. So जब आपकी जैसे सेल अमाउंट हुई 1989 रुपीज की, 1989 के बाद अगर आप इसको देखेंगे 1989 रुपीज, उसमें आपके मार्केट प्लेस फीस लगी है 136 रुपए 48 पैसे, तो वो बचा 1852। और उसमें आपके टैक्सेस लगे हैं जिसमें 136 पे 18%, विच वॉज लाइक 24 रुपया, एंड प्लस 16 रुपया और 16 रुपया के करीब जो इन्होंने बेस प्राइस पे टीसीएस और जो आपका टीडीएस ले रखा है उसको मिला के 58.442, दिस वॉज द अमाउंट। और ये एक 10 रुपए का कस्टमर एड ऑन जो इन्होंने आपको प्लस किया है, प्लस 10 रुपीज, ये टोटल आपकी सेटलमेंट बनता है विच इज 1804.078। सो दिस इज हाउ दिस बैंक सेटलमेंट्स गेट कैलकुलेटेड। और हर एक लाइन आइटम का कैलकुलेट करने के बाद, इफ आई जस्ट टोटल ऑफ दिस कॉलम, यू कैन सी दैट इट हैज come to close to around 727,786. This is how this order sheet line item by line item gets calculated. एक बार मैं फिर बता देता हूं, ध्यान रखने की बात है। आपका सेल अमाउंट कितना था, उसके अंदर जितना भी अगर कोई ऑफर अमाउंट ऐड हुआ, माई शेयर ऐड हुआ, कस्टमर एड ऑन ऐड हुआ, तो इसको ऐड करते हैं तो ये जैसे 1999 बन जाता है। उसमें से आपकी मार्केट प्लेस फी गई और आपके टैक्सेस गए, और अगर कोई ऑफर एडजस्टमेंट्स या प्रोटेक्शन फंड या रिफंड है उसको अगर हम ऐड या माइनस करके देखेंगे, तो ये जैसे आप नीचे देख सकते हैं 1804 इट इज कमिंग, एंड दिस इज द सेटलमेंट दैट यू हैव गॉट। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगली पेमेंट साइकिल में ये प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका होगा, तो जब ये रिटर्न हो जाएगा तो इसकी जो काफी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं और वो नेगेटिव में दिखने लग जाती हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ हियर? Any questions? No. Okay, so this was a little that, like you can see this transaction which has happened. इसके अंदर बैंक सेटलमेंट जो है मेरे को नेगेटिव मिला है। दिस इज द ट्रांजैक्शन आई एम पुटिंग इट फर्स्ट। So they have deducted 1379 from my pocket. Why? Because there has been a refund of 1299 जो कस्टमर ने किया है। तो इस ऑर्डर आईडी पे मुझे पहले पेमेंट मिल चुकी होगी जिसका पॉजिटिव आया होगा किसी पिछली पेमेंट साइकिल के अंदर,
और यहाँ पे इस पेमेंट साइकिल के अंदर ये रिफंड हुआ है। तो अगर आप देखेंगे क्योंकि ये रिफंड हुआ है सारा और ये कस्टमर रिफंड है, तो इसके अंदर जो है मेरे को क्योंकि ये कस्टमर रिफंड है तो मेरे को कोई भी वापसी नहीं हुआ है, उल्टा मेरे को और चार्जेस लगे हैं। तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स के भी मेरे को जो है ये 78 रुपीज के करीब जो है चार्जेस लगे हुए हैं, उस पर टैक्सेस लगे हैं। तो ये टोटल नेट नेट करते हुए जो मेरा इस पे जो सेटलमेंट बना है वो 1379 नेगेटिव का सेटलमेंट बना है। कस्टमर रिटर्न पे आई हैव बीन पीनलाइज दिस कुड ऑल्सो हैव बीन अ रिटर्न। जैसे आप जो नेक्स्ट ये जीरो वाला आइटम देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे सेल हुआ 5951 का, और 5951 के साथ सेल होते के साथ ही ये पूरा का पूरा रिफंड हो गया, यानी कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया होगा। और इससे पहले कि कुछ लगता, ऑल वॉज जीरोवाइज्ड, कुछ भी नहीं हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर किया और ये कैंसिल कर दिया। और इसलिए हालांकि ऑर्डर जनरेट हुआ, सिस्टम ने दिखाया, पर सिस्टम ने ये भी दिखाया कि इट इज जीरो। So this was my main purpose of today's session. It's a very short session and I take very short, otherwise it becomes very technical and boring. So I would be talking about the SKU level profitability in the next session that I'm going to take. Do you have any questions in understanding the payment report? You can tell me. The MP fee rebate, the marketplace fee rebate, if any, अगर कोई incentive आ रहा हो पीछे से कुछ भी, so this is how it comes. Sometimes they give you deals, you opt for deals, so this is how it comes. इंसिडेंटली नॉन ऑर्डर एसपीएफ हमारे पास नहीं आया। स्टोरेज रिकॉल हम क्योंकि अपने वेयर हाउसेस से करते हैं, वी डू नॉट यूज फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट, एफबीएफ नहीं करते हैं, अपने वेयर हाउसेस से करते हैं, तो देयर इज नो स्टोरेज रिकॉल। बट एड्स इज देयर, यस, यू कैन सी द काइंड ऑफ द मनी दैट वी आर स्पेंडिंग। सो वी हैव डिफरेंट कैंपेन्स और ट्रांजैक्शन आईडीज। एंड व्हाट हैपेंस इज कि इसके अंदर व्हाट हैपेंस इज कि ट्रांजैक्शन आईडी आपकी अलग होती है। कोई ट्रांजैक्शन होती है जो आपके वॉलेट में चली जाती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिलेट दीज ट्रांजैक्शंस टू द रिपोर्ट दैट यू विल जनरेट फॉर योर एड्स, क्योंकि उसमें आपको कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और वो कॉमन पॉइंट इसलिए नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में दो ट्रांजैक्शन होती है। पहले आपके खाते में से, यानी आपकी जो पेमेंट वाला अकाउंट है उसमें से पैसे निकलते हैं और वो वॉलेट में जाते हैं, और फिर वो वहां से वॉलेट में से आपके ऐड के स्पेंड्स होते हैं। तो आपको ऐड रिपोर्ट कभी भी पेमेंट रिपोर्ट की ऐड स्पेंड के साथ मैच नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे 1500 रुपये, 1000 रुपया, ऐसे जितना भी आप डालते हो वॉलेट के अंदर वो कटता हुआ दिखेगा। And then of course, these are the GST details, जो आपके GST, on fees, or what all inputs are there, you can find them here. So this is how Flipkart payment file is made. The most important part of this file is the orders tab, because 95, 98, 99% of the amounts is here only in the orders tab. And the best part about Flipkart payment file is that it is as per order and order item ID, which is becomes very easy to link it to the order or to the sales that we are doing. Any questions that we have? Anything related to the tax aspect also, which is outside this domain, or anything on the Flipkart payment file, anything, I'll answer. Sir, I would like to know, it may be not part of this session, but I would like to know regarding the cross-border e-commerce. In the cross-border e-commerce, sir, what exactly do you Yeah. want to know, sir? I have a warehouse in Frankfurt. So you have a warehouse in Frankfurt, okay? I'm based in Gurgaon. I need a one-to-one with you. Yes, sir, we can do. I'll tell you about these things. So if you already have a warehouse there, what you can do is I can connect you to the Amazon team there, here rather, which handles the cross-border marketplace thing. Usually what happens is कि आप जब
उनसे आप लॉगिन्स ले लेते हैं, जैसे आपने .eu का ले लिया लॉगिन, या .com का ले लिया, या दुबई का ले लिया, या सिंगापुर वगैरह का ले लिया. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट यू देन टेंड टू शिप मटेरियल. तो आप उनके सीधे वेयर हाउस में मटेरियल भेजते हैं. उनका जो कैरिंग कॉस्ट है स्टोरेज का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है. सो इवन नाउ दैट व्हाट वी आर डूइंग इवन इन इंडिया इज कि वी हैव आवर ओन वेयर हाउसेज लाइक इन बॉम्बे, बैंगलोर एंड गुड़गांव. तो हमारा जो भी माल होता है पहले हम इन वेयर हाउसेज में भेजते हैं, और इन वेयर हाउसेज में रखने के बाद ही हम लोग जो है वहां से उसको धीरे धीरे करके भेजते हैं. बिकॉज दे आर लाइक माई गैस फ्लो, इफ आई टॉक अबाउट, वी वर वर्किंग आउट, आई थिंक मेरे को एक गैस स्टोव रखने का जो खर्चा है वो करीब ₹2.5 दिन का है अमेजोन के वेयर हाउस में, और मेरे अपने वेयर हाउस में वो लगभग 50 पैसे का है. और अगर मैं बाहर बाहर जाता हूँ जैसे फ्रैंकफर्ट या यूएस वगैरह में, और अगर सारा का सारा सामान उनके वेयर हाउस में भेज देता हूँ, तो मेरे को खर्चे भी यूरोप और यूएस वाले टाइप के देने पड़ेंगे, जो वेयर हाउस के कैरिंग कॉस्ट होंगे. तो इट मेक्स सेंस दैट इफ यू ऑलरेडी हैव अ वेयर हाउस विच विल बी मच लेस कॉस्टली, तो you can do from there. So yes sir, my number, I'm just putting it up. Maybe you can send me a message and we'll connect in the coming week, sir. I'll just put up a message. I'm requesting my team member, I'm not able to see the chat box. I'm requesting my team to put my number on the chat. Yeah, I got it, I'm putting it. Sir, which all extra cost or penalty are associated with the returned orders, and is reverse shipping fee amount is not same as the original shipping? They ask for 50% more. Why we stopped working with the Paytm Mall and Snapdeal? It was because even in say suppose they get the orders for us, तो उसके अंदर जब ऑर्डर्स आते हैं तो कमीशन, वेट हैंडलिंग, फिक्स्ड फी, पिक एंड पैक, ये सब लगता है. तो वी आर ओके, आप लगाइए, कोई बात नहीं लगेगा. बट अगर मार्केट प्लेस पे कोई ऑर्डर आया और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया इवन बिफोर वी कुड सेंड द मटेरियल, so why would you charge me any fees? भाई आप मार्केट प्लेस हैं, आप मुझसे जो है पैसे उस चीज के चार्ज कर रहे हैं कि आप मेरे पास कस्टमर लेकर आ रहे हैं. अगर आप कस्टमर नहीं ला पा रहे, आपका कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी. व्हाई आर यू चार्जिंग मी कमीशन और अ फिक्स्ड फी और अ पिक एंड पैक फी? दिस इज योर फॉल्ट. Amazon और फ्लिपकार्ट वो वाले पैसे नहीं लेते. Amazon और फ्लिपकार्ट जो है सिर्फ रिवर्स शिपिंग तब लेते हैं अगर कस्टमर रिटर्न आता है, तो वो आपसे कमीशन भी लेंगे और आपका फॉरवर्ड शिपिंग भी लेंगे, और नॉर्मल जो अपने चार्जेस लेते हैं वो कलेक्शन कॉस्ट वगैरह वो भी लेंगे, और रिवर्स शिपिंग भी आपको चार्ज लगाएंगे, विच इज लाइक रफली अराउंड 1.5 times I think of the normal shipping. So only if the order is returned as per the customer return है, अगर वो RTO है यानी रिटर्न टू ओरिजिन इन अ नॉर्मल वे, तब आपको कॉस्ट नहीं लगता Amazon या फ्लिपकार्ट में. राज सर, यू वांट टू से समथिंग? Mr. Raj, we will keep it later on. You just keep it with your current subject. Okay. We can take it later. Sure. I'm requesting my team to note down the contact details of Mr. Raj Kasera. We can work from there. Okay. Is there any other question? Yes, sir, we've taken note. Yeah. Okay, ma'am. Any other question? Okay, if there is not, then I'll just close the session for today, and thank you for being here. And we'll immediately just share the YouTube link also of this. Yeah. There's one. Yeah, please go ahead. Hello. Yes, you're audible, Hello. sir. Yes. Manish, this you said you were storing on your own. Yeah. I wanted to understand the point where in your stores you have to ship the stocks yourself, right? To Bombay, Bangalore, to various locations. Yeah. You have. Yes. If you're storing in Amazon or Flipkart warehouses in these cities,
will the platforms be taking those goods themselves, or there also you only have to ship them? Yeah. So what happens is that, I'll just tell you the logistics, how it works. Every warehouse of Amazon or Flipkart, they are very particular कि हमारा warehouse छोटा है या ये हमारा warehouse बड़ा है. So what they do is that sometimes they will accept a 32-feeter, other times they won't accept a 32-feeter. Sometimes in a 32-feeter or any 17-feeter, they will say कि भाई ऊपर से आपको इतनी जगह छोड़नी है और आपका जहाँ पे डाला खुलता है वहां से आपको इतनी जगह छोड़नी है. तो what happens is that when you are sending it for a long distance, if you just send maybe a 17-feeter, can you hear me, Abhishek? Am I audible? Okay, my voice not clear. Okay, I'll try switching my camera off. Is my voice any better now? Is my voice any better? Can people hear me? Now clear. Okay. So what I'm saying is that every warehouse has a different, कि भाई ये इतना साइज का है, यहाँ पे मोड़ने की जगह है, इतना इसमें सामान जा सकता है या इतना नहीं जा सकता है. So what happens is it is very difficult for you to manage कि आप उनका एक warehouse है बॉम्ब 7 जिसके अंदर 17 फीट लगती है, एक बॉम्ब 5 है जिसमें सपोज 32 फीट लगती है, तो आप यहाँ से क्या सामान भेजोगे? Again breaking up. Okay, I'm changing the Wi-Fi. Okay, I'm back. Is my voice any better? Yes, sir. Okay. Still, I'll try to move, in a better network. Meanwhile, I'll try to answer this question. So, Abhishek ji, what happens is it's very difficult to manage for Amazon depending or Flipkart depending उनके कौन से warehouse में माल जा रहा है. So what happens is we send it to our warehouses. हमारी पूरी जो है 32 फीटर एक जाती है जिसमें पूरा सामान होता है, so that we have efficiently optimized our logistics cost from one location to the other. And once we have all the saman in our warehouse, then we can make shorter shipments to send it to them. So that becomes more cost effective than sending a direct vehicle to the Amazon or the Flipkart warehouse. And now why we do that is, why do we need to send to their warehouses in different locations? Because for sure, be it Amazon or be it Flipkart, everybody is working for, the customer experience. And if your material is not there in, Bangalore or Hyderabad or Kolkata or Mumbai, the views of your product to the people who are logging in on the marketplaces, the views of your product will be restricted, which means your sales will be lower. Did I make sense?
Yes, yes, definitely. Okay, so that is why we use our warehouses. So they become a kind of a point, and then we can also lower the storage cost by using our own warehouses. Because if we send one, say, big vehicle directly to the Amazon warehouse, so by the time it will be depleted, it would have cost us a huge amount. So it makes sense for us to send smaller lots to them once we have already reached, say, a Bombay location in our warehouse or a Bangalore location in our warehouse, like that. Okay, any other question do we have? Perfect. Perfect. Thank you. Okay. So I think we'll call it a day, and thank you all once again for joining. And we'll be sharing the link of the YouTube thing very shortly. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Bye.